नमस्कार सलाम दोस्तों। आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज जिसका दूसरा चैप्टर है सारायण सुर, उसका चौथा पार्ट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और पढ़ने का प्रयत्न करें ताकि आपकी पढ़ाई में आपको ये मदद रूप हो सके। तो अब हम उसका चौथा पार्ट शुरू करेंगे। જ્યારે રમઝુમીર સકીનાને ખુશ કરવા માટે શરણાઈ વગાડતો તો એ સમયે સકીના પણ એની સામે કાલો કાલો બોલવા લાગતી અને એના કાલા ગેલા બોલમાં રમઝુ મૃત પત્નીની પ્રેમ પ્રચુર વાણી સાંભળી રહેતો। આ રીતે શરણાઈ રમઝુમીર માટે કેવળ રોટલો રળવાનું જ સાધન ન હતું, વિદેહી જીવન સંગાથીની સાથે સાનિધ્ય અનુભવવાનું, એના જીવનબીન સાથે એક સૂર, એક તાલ, એક રસ બનવાનું જીવતું જાગતું વાદ્ય હતું। તેથી જ તો પત્નીની કબર પર ફૂલ ચડાવવા જતો ત્યાં ઓટા પર મરવાના ફૂલ છોડની મહેક માણતો માણતો એ શરણાઈના સૂર વહાવતો હતો। રમઝુની આ વિચિત્ર લાગતી ખાસિયત ગામ આખામાં ચર્ચાનો વિષય બની ચૂકેલી। વ્યવહાર ડાહ્યા લોકો આ ગરીબ માણસની આવી ધૂનને ગાંડપણમાં ખપાવતા, પણ મનસ્વી મીરને આવા અભિપ્રાયોની ક્યાં પડી હતી। એ તો સપનાને સહારે જિંદગી જીવતો હતો ને શરણાઈ વડે એ સપના સાચા પાડતો હતો। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं, ये जो रमजू जो है वो अपनी बेटी को खुश करने का प्रयत्न करता था और उसकी बेटी भी अपनी काली गली भाषा में, बचपन की छोटे बच्चों की भाषा में ऐसे प्यार भरे शब्दों से बोलने लगती थी और उसके इस प्रेम भरे बोल को रमजू मृत पत्नी की प्रेम प्रचुर वाणी जैसे सुन रहा हो इस प्रकार वो सुनता था। और इस प्रकार ये जो शहनाई है वो रमजू मीर के लिए सिर्फ रोटी कमाने का एक साधन नहीं था, बल्कि वो अपनी विदेही यानी ये अपने पत्नी के बगैर जो जीवन है उस जीवन की साथी के रूप में ये जो शहनाई थी और उसके एक सुर, एक ताल और एक रस बनाने के लिए अपने जीवन को इस प्रकार रसपूर्ण बनाने के लिए यही एक उसका एक वाद्य था। और इसीलिए रमजू अपनी पत्नी की कब्र पर जब भी फूल पर चढ़ाने के लिए जाता तो उस समय वहाँ पर जो मरवा यानी कि एक डमरे का जो फूल छोड़ होता था उसकी महक को वो महसूस करता था और वहीं पर शहनाई बजाता था। रमजू की इस प्रकार की विचित्र लगने वाली ये जो खासियत है पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था और वहाँ के जो व्यवहारू लोग थे वो इस गरीब इंसान की धुन को पागलपन में वो बताते थे। लेकिन इस मीर को सिर्फ अपनी मन की करने वाले इस मीर को इन सभी लोगों के अभिप्रायों की कोई पड़ी नहीं थी और वो तो अपने सपनों के सहारे अपनी ज़िंदगी जीता था और उसे अपने सपनों को अपनी शहनाई के वरे यानी अपनी शहनाई के द्वारा अपने सपनों को सच करने की कोशिश करता था।
પાપણમાં પૂરાયેલા સુમધુર સ્વપ્ન સમી સકીનાને પણ રમઝુએ એક દિવસ સાસરે વળાવવી પડી હતી અને તે દિવસે એણે પારાવાર દુઃખ અનુભવ્યું હતું. અત્યારે એના પગલાં ગામ જાપાનની દિશામાં પડતા હતા, પણ એના મનનું માંકડું તો અતીતની યાત્રાએ ઉપડી ગયું હતું. પ્રસંગોની પરકમમાં કરતું કરતું એ વારે વારે પુત્રી વિદાયના આ પ્રસંગ પર આવીને અટકતું હતું. પુત્રી વિદાયનો એ પ્રસંગ તાજો થતાં ડોસાનું વત્સલ હૃદય વલોવાઈ જતું હતું અને એ વલોપાત શરણાઈના સૂર વાટે વ્યક્ત થઈ જતો હતો. અત્યારે પોતે ખોબા ખારેકની લાલચે શરણાઈ વગાડવા આવ્યો હતો એ વાત રમઝુ વિસરી ગયો. સાસરીએ સોંઢી રહેલી કન્યા ભૂદર મીરાઈની ગૌરી છે એ હકીકત પણ એ ભૂલી ગયો. અત્યારે તો પોતાની સગી દીકરી સકીનાને વિદાય અપાય છે એમ સમજીને શરણાઈમાં એ હૃદયની સઘળી વ્યથા રેડી રહ્યો હતો. તેથી જ તો ઝાંપે પહોંચતા સુધીમાં તો રમઝુના દર્દનાક સૂરોએ આખું વાતાવરણ ભારજલું બનાવી મૂક્યું હતું. અને આનું કારણ એ હતું કે સકીનાનું સંભાળણું રમઝુ માટે જરાય સુખદ ન હતું. ડોસાના કાળજામાં વિસ્મરણની રાખ તળે સકીનાના નામનો ધગધગતો અંગારો ભરેલો પડ્યો હતો. આવા પ્રસંગે એ રાખનું આવરણ દૂર થતાં ડોસાની ભીતરમાં ભડકા ઉઠતા. કારણ એ હતું કે સકીનાને સાસરીએ મોકલ્યા પછી 8મે દિવસે જ એના ભેદી મૃત્યુના વાવડ આવેલા. એ મૃત્યુનો ભેદ રમઝુ પણ ઉકેલી શકેલો નહીં. સકીનાના અકળ મૃત્યુથી ડોસાએ પુત્રી તેમજ પત્ની બંનેના દેહ વિલયનો બમણો વિયોગ અનુભવેલો. દિવસો સુધી તો એ અવાક થઈ ગયેલો. એની ચિત્તભ્રમ જેવી દશા જોઈને લોકો કહેતા કે ડોસાની डागड़ी चसकी गई છે. यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि अपने आँखों में सपने की तरह अपनी बेटी सकीना को एक दिन ससुराल में विदा करना पड़ा था और उस दिन उसने बहुत ही दुख महसूस किया था और अभी उसके जो पैर हैं वो गांव की सीमा की ओर पादर की ओर पड़ रहे थे, लेकिन उसका जो मन था वो तो अतीत की यादों में, यानी अतीत की जो यात्रा है उसकी यादों में उसका मन चला गया था. प्रसंगों की परिक्रमा यानी परिक्रमा करते करते वो बारंबार उसकी जो याद है अपनी पुत्री विदाई के प्रसंग पर आकर अटक जाती थी. पुत्री विदाई का वो जो प्रसंग है वो उसे याद आते ही उसका जो हृदय था वो एकदम दुखी हो जाता था और उसका ये दुख उसकी सहनाई के सुरों के द्वारा व्यक्त होता था. और अभी भी वो सिर्फ खारेक की लालच से सहनाई बजाने के लिए नहीं आया था और ये बात वो भूल भी गया था. विसरी जाऊँ यानी भूल जाना. सासरिए यानी कि ससुराल में जाने वाली जो कन्या बुदर मेराई की गौरी है ये हकीकत भी वो भूल गया और अभी तो वो अपनी खुद की सगी बेटी सकीना को विदाई दे रहा है ये समझकर सहनाई के अंदर अपने दिल की सारी व्यथा को वो अंदर डाल रहा था और इसीलिए वो बारात गांव के गेट तक पहुंचते समय रमझू का जो दर्दनाक जो सुर था उस सहनाई के सुरों ने पूरे वातावरण को एकदम गमगीन बना दिया था. और इसका कारण ये था कि सकीना की जो याद है वो रमझू के लिए बिल्कुल सुख देने वाली नहीं थी, क्योंकि इस रमझू के हृदय में विस्मरण की राख के नीचे सकीना के नाम का जो अंगार भरा पड़ा है वो ऐसे प्रसंग में इस राख के आवरण को दूर करते ही इस बूढ़े के भीतर उसकी ज्वाला उठ रही थी. क्योंकि सकीना को जब ससुराल भेजा गया था तो उसके 8वें दिन ही इसके
जो रहस्यमय मौत के समाचार उसे मिले थे और उसका जो भेद है वो रमजू भी पता नहीं लगा सका था। और सकीना के इस प्रकार अचानक मृत्यु से इस रमजू के जीवन में पत्नी और बेटी दोनों का डबल दुख उसके जीवन में आ गया था और इसीलिए कई दिनों तक वो बिना बोलचाल के एकदम सुनमुन रहा था। और इसकी जो दशा थी, उसका जो चित्त जो था वो अपने ठिकाने पर नहीं था, यानी उसका जो मानसिक संतुलन हिल गया था और इसीलिए लोग कहते थे कि भाई ये जो बूढ़ा है वो पागल हो ગયા है। તેથી જ તો પાદરમાં પહોંચ્યા પછી રમજીએ શરણાઈની તાન ઉપર આમથી તેમ ચાલવા માંડ્યું ત્યારે લોકોએ તેને ગાડામાં ગણી કાઢ્યો અને પીપળા હેઠે ગાડું થોભ્યું। ગૌરીને સરખી સમવડી સહિયરો એક પછી એક વિદાય આપવા આવી। સહુ બહેનપણીઓ ગૌરીની નજીક જઈને ગોઠિયણના કાનમાં ધીમી ગોષ્ઠી કરીને આંસુભરી આંખે પાછી આવતી હતી। ઘર ચોળાના ઘૂંઘટાની આડસે રડી રડીને ગૌરીની આંખો લાલ હિંગડા જેવી થઈ ગઈ હતી। એ તો અત્યારે જ ખબર પડી। હિબકતી પુત્રીને જોઈને માતાનું હૃદય હાથ ન રહ્યું। સાથે આણેલી ટબુડીમાંથી ગૌરીને 2 ઘૂંટડા પાણી પાઈને તેઓ કોછવાતા હૃદયે દૂર ચાલ્યા ગયા। પણ એમની પાંપણ પર આવીને અટકેલા આંસુ રમજૂની નજર બહાર નહોતા રહે। લાગણીની આવેશમાં માતા જે ભાવ વાચા દ્વારા વ્યક્ત નહોતી કરી શકતી એની અભિવ્યક્તિ રમજુ પોતાના સૂર વાટે કરી રહ્યો। આમ તો પાદરનો આ પીપળો અને ચબૂતરો ગામની સેંકડો કન્યાઓની વિદાયના સાક્ષી બની ચૂક્યા હતા। રમજુ પોતે પણ આવા અસંખ્ય વિદાય પ્રસંગોએ શરણાઈ વગાડીને સાટામાં રૂપિયો રોડો મહેનતાણું મેળવી ચૂક્યો હતો। પણ આજની વાત અનોખી હતી। આજનું વડામણું વિશિષ્ટ હતું। આજનો વિદાય પ્રસંગ સાવ વિલક્ષણ હતો। આજે દર્દનાક શરણાઈ વગાડનાર માણસ અવસ્થાને આરે પહોંચેલો ખખડી ગયેલો રમજુ મીર ન હતો, પણ 20 વર્ષ પહેલાં સકીનાને વિદાય આપનાર પુત્રીનો પિતા હતો। તેથી જ તો તળસી વેવાઈએ પાવલાથી માંડીને બાધા રૂપિયા જેવડી મોટી રકમની 3 વાર દાદ આપવા છતાં રમજુ શરણાઈ બંધ કરીને પાદરમાંથી પાછો ફર્યો નહીં। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि इसीलिए जब रमजू मीर पादर के तरफ पहुंचा तो उस समय उसने अपनी शहनाई की तान पर इस प्रकार चलने लगा कि लोग उसे पागल ही समझने लगे। पीपल के नीचे जब बैलगाड़ी रुकी तो उस समय गौरी की जो सखी सहेलियां थी वो एक के बाद एक उसे विदाई देने के लिए आई और सभी बहनपणी यानी कि सभी सखियां गौरी के पास जाकर उसके कानों में धीरे से उसे कुछ कहने लगी और फिर आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ वापस आने लगी। और इधर घूंघटे के आड़ से रो रो कर गौरी की आंखें भी लाल हो गई थी, जो उसे अभी ही पता चला। रोती हुई पुत्री को देखकर माँ का जो हृदय था वो अपने ठिकाने पर नहीं रहा और उसने अपने साथ जो टबुड़ी यानी कि जो पानी का जो लोटा था उसमें से गौरी को 2 घूंट पानी पिलाया और फिर दुखी हृदय से वहां से दूर चली गई। लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू थे वो आंसू रमजू की नजर के बाहर नहीं रहे और जो लागणी लागणी यानी कि जो दुख, जो आवेश था, ये जो समय था वो माता जो भाव, जो अपनी बात अपनी आंखों से व्यक्त नहोती यानी व्यक्त नहीं कर सकती थी, उसकी अभिव्यक्ति को रमजू ने अपने सुर के द्वारा व्यक्त किया। वैसे तो पादर का ये जो पीपल का पेड़ और जो पंछियों का जो स्थान है वो गांव की असंख्य कन्याओं की विदाई का साक्षी बन चुका था। रमजू खुद भी
ऐसे कई प्रसंग में शहनाई बजाने के लिए आया था और उसके बदले में उसने कितनी बार उसका जो मेहनताना जो पैसा था वो प्राप्त कर चुका था। लेकिन आज की बात अनोखी थी। आज की जो विदाई थी वो विशिष्ट था, विलक्षण था। आज दर्दा दर्द से भरी शहनाई बजाने वाला जो इंसान था वो एक बूढ़ा रमजू मीर नहीं था, लेकिन 20 साल पहले सकीना को विदाई देने वाला एक पुत्री का पिता था। और इसीलिए जो तड़सी विवाह है उन्होंने 25 पैसे से लेकर बड़ी रकम दाद में 3-3 बार पैसा देने के बाद भी रमजू शहनाई बजाना बंद नहीं किया और पादर में से वापस भी नहीं गया। કન્યા પક્ષ તરફથી કારુણ્યની પરાકાષ્ઠા સમૂહ વિદાય ગીત ઉપડ્યું હતું કે ભાઈ દાદાને આંગણે આંબલો ધીર ગંભીર જો એક રે પાંદડું અમે તોડ્યું દાદા ગાળ માં દેજો જો અમે રે લીલુડા વનની ચરક લડી માત્ર ગૌરી નહીં, ગૌરીની ગોઠિયાણો જ નહીં, કન્યાના આપ્તજનો જ નહીં, પણ સીમાડાનું સમગ્ર વાતાવરણ જાણે કે ડૂસકા ભરતું લાગ્યું અને મીરની શરણાઈ આ શોકમગ્ન વાતાવરણ સાથે અજબ સંવેદ સાધ્યો. એના સૂરમાં ગૂંટાતું દર્દ વાતાવરણની ગમગીનીને દ્વિગુણિત બનાવી ગયું. રમજો ચગ્યો હતો, એની શરણાઈ ચગી હતી. પોતાના ચીરાયેલા દિલની વેદનાને ચગાવવામાં પણ ડોસો ચેન અનુભવતો હતો. પણ કન્યાને લઈને ઝટપટ ઘર ભેગા થઈ જવાની ઉતાવળમાં વરરાજા તેમજ વરના બાપ તળસી વેવાય તલપાપડ થઈ રહ્યા હતા. પાદરના મોકળા પટમાં મોકળે મને સૂરો રેલાવી રહેલા મીરને જોઈને વેવાઈની અકળામણ વધતી જતી હતી. આખરે તેમણે ભૂધર મીરાઈ સમક્ષ એ અકળામણ વ્યક્ત કરી પણ ખરી. તમારો મીર તો ભાર્ય લાલચુ લાગે છે. આટલી દાદ દીધી તોય હજી ધરવ નથી થતો. અમારે તો અહીં સીમાડે જ સૂરજ આથમી जासे એમ લાગે છે. यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि कन्या पक्ष की ओर से अपने दुख को व्यक्त करते हुए उन्होंने भी ये जो विदाई गीत गाया, यानी कि गाना शुरू कर दिया था। इस समय सिर्फ गौरी, उसकी सहेलियाँ और उसके रिश्तेदार ही नहीं बल्कि पूरी जो सीम थी, गांव का जो सीम का बाहर का जो वातावरण था वो भी ऐसा दुख दर्द भरा लग रहा था। और मीर की जो शहनाई है इस शोकपूर्ण वातावरण के साथ उसने अजब सा साथ पा लिया था और उसके सुर में उसका जो दर्द है, जो दुख है, वो इस वातावरण की गमगीनी को और भी ज़्यादा दुखी बना रहा था। और इस समय रमजू जो है वो अभी जोरों पर शहनाई बजाना उसने शुरू कर दिया था और उसके जो दुखी दिल की जो वेदना थी उस वेदना को वो बाहर लाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर रहा था। उसके दिल को बिल्कुल चैन नहीं था। लेकिन दूसरी ओर कन्या को लेकर फटाफट अपने घर की ओर जाने की जो तालावेली थी उसमें वरराजा और वरराजा के जो पिता है तड़सी वेवाई दोनों अधीर हो गए थे। पादर के अंदर मुक्त मन से सूर निकालने वाले मीर को देखकर ये जो वेवाई है यानी कि तड़सी वेवाई, उनका गुस्सा जो है वो बढ़ता जाता था और इसीलिए उन्होंने अंत में थककर अपने जो बुधर मीराई है उनके समधी उनके सामने अपना सारा गुस्सा निकाला और कहा कि आपका ये मीर तो बड़ा लालची है,
इतनी दाद दी यानी इतनी बख्शिश दी, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। और अब तो हमारे गांव की सीम तक पहुंचते पहुंचते ये जो सूरज है वो भी डूब जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। વેવાઈની ફરિયાદ સાંભળીને તુરંત ભૂધર મીરાઈ જાનનો માર્ગ રોકીને ઊભેલા મીરની પાસે જઈ પહોંચ્યા અને મોટે સાદે સંભળાવ્યો, એલા ડોસલા, આવો ભૂખાડ ક્યાંથી થયો? આટલી બધી દાદ દીધી તોય હજી તને ધરપત નથી? આટલા પાંવ પડ્યા તોય હજી હાવ નથી કહેતો? પણ રમજુ તો પોતાની શરણાઈના સૂર સિવાય બીજું કંઈ સાંભળે એમ ક્યાં હતો? કંટાળીને ભૂધર મીરાઈએ વેવાઈને કહ્યું કે ડોસાની ડાગડી જરાક ચસકી ગયેલ છે. દુખ્યો જીવ છે ને એમાં પાછી પાકી અવસ્થા થઈ એટલે કડવકડ ભાન નથી રહ્યું. એને ભલે કડવકડનું ભાન ન હોય, પણ અમારે અસુરું થઈ જશે એનું શું? તળસી વેવાઈએ તીખે અવાજે કહ્યું. એક તો બીકળાડો માર્ગ ને ભેખા જર જોખમ. હવે ભૂધર મીરાઈનો મિજાજ હાથથી ગયો. તેમણે દાંત પેટે જમીન પર ફેંકાવેલા જો સિક્કા છે એ વીણીને પરાણે મીરની મુઠ્ઠીમાં પકડાવ્યા અને પછી એને હડસેલો મારીને કહ્યું કે એલા લઘરા, હવે તો માર્ગ મોકળો કરીને ઘર ભેગો થા. હજી તો તારે કેટલાક રૂપિયા ઓકાવવા છે કે પછી મીઠા ઝાડના મૂળ ખાવા છે બાવા માગણ? ભૂધર મીરાઈની આ હડસેલાથી મીર હાલ્યો તો ખરો, પણ પોતાના ઘરને ગામને માર્ગે નહીં, સીમને માર્ગ સણોસરાને કેડે. આ તો હજી સગડ નથી મેળતો. તળસી વેવાઈ કંટાળીને બોલ્યા, આ તો અમારી મોર વહેતો થયો. મર થાતો. સીમને માર્ગે સામે ચાલતા રમજુને જોઈને ભૂધર મીરાઈએ કહ્યું કે થાકશે એટલે એની મેળે પાછો આવતો રહેશે. અને પછી વેવાઈને છેલ્લી સૂચના તરીકે ઉમેર્યું કે હવે ખબરદાર, એને રાતું કાવડિયું પણ આપ્યું છે તો તમે પહેલેથી જ છૂટે હાથે દાદ દેવા માંડી એમાં ડોસો સોનાના ઝાડ ભાડી ગયો. પણ હવે ભૂંગળું ફૂંકી ફૂંકીને મરી જાય તોય સામું જોશોમાં. અને પછી બંને વેવાઈઓ ભાવે કરીને ભેટ્યા અને જાન સણોસરા કેળે चढ़ी। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अपने जो विवाह है यानी कि समधी जो है उनकी फरियाद सुनकर भूधर मीराई जो है वो बारात का जो रास्ता रोककर मीर खड़ा था उसके पास पहुँचे और ज़ोर से उसे कहा कि अरे बूढ़े, ऐसे तो भूखा कहाँ से निकला? इतनी ज़्यादा तुझे बख्शिश दी, फिर भी तुझे तेरा जो दिल है वो भरा नहीं है। इतने पैसे पड़े फिर भी अभी तू बंद करने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन रमजू जो है वो अपने सहनाए के सुर के सिवा और कुछ सुने ऐसा नहीं था। अंत में भूधर मीराई ने उसे कहा, यानी कि अपने वेवाई को, अपने समधी को कहा कि ये जो बुढ़ा है उसका जो दिमाग है वो ज़रा हट गया है, पागल हो गया है, दुखी जीव है और इस प्रकार बुढ़ापे में, इस अवस्था में कहते हैं कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है, उसे किसी बात का भान नहीं है। तो तड़सी वेवाई ने कहा कि भाई उसे भले किसी चीज़ का भान ना हो, लेकिन हमारे अगर कोई अनिच्छनीय घटना हो गई तो क्या करेंगे? एक तो पहले से डरावना जो रास्ता है और ऊपर से ये जो जोखम हमारे साथ है। अब भूधर मीराई जो है उनका मिजाज भी अपने हाथ से निकल गया और उन्होंने दांत के रूप में जो पैसे ज़मीन पर फेंके हुए थे उसे उठाकर मीर की हथेली में पकड़ा दिए और फिर उसे धक्का लगाकर कहा कि अब तू अपने घर की तरफ जा, अभी तुझे और कितने पैसे चाहिए?
फिर तुझे पैसे अगर चाहिए तो फिर तुझे उसके बदले में ये जो सज़ा मिलेगी। मीठा झाड़ना मूड खावा से, इसका मतलब है कि तुझे इसके बदले में फिर हमें सज़ा देनी पड़ेगी। बुधर मीरायना हड़सेला थी, यानी कि ये जो बुधर मीराई जो है, उन्होंने जो मीर को धक्का दिया, उससे मीर अपने गांव की तरफ नहीं हटा, लेकिन वो सीम की ओर जाने लगा। ये तो अभी तक सहने बजाना बंद नहीं कर रहा है। इस प्रकार तरसी जो विवाह है वो अंत में थक कर बोलने लगे कि ये तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। भले आए। सीम के रास्ते पर चलते हुए रमजू को देखकर बुधर मीराई ने कहा कि वो अगर थक जाएगा तो अपने आप वापस चला आएगा। बाद में वेवाई ने अंतिम सूचना के रूप में कहा कि अब खबरदार, अगर उसे एक पैसा भी दिया है तो आपने पहले से ही दिल खोलकर उसे बख्शिश दी, इसीलिए ये जो बूढ़ा है वो लालची हो गया, और अब अगर वो सहनाई बजा बजा कर अगर दम भी तोड़ दे तो भी आप उसे एक पैसा भी नहीं देना। और इस प्रकार दोनों जो समधी है एक दूसरे के गले लगकर वहाँ से अलग हुए और बारात जो है वो सणोसरा के रास्ते पर निकल पड़ी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं, और बाद में मैं आपके सामने इसका जो 5वां जो पार्ट है वो जल्द से आपके सामने लाने का प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरा यह वीडियो आपके और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी पढ़ाई में भी ये मदद रूप हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार।